Hello students, today we are going to start our discussion about the properties of the colloidal solutions, right? So the different properties exhibited by the colloidal solutions are like colligative properties. In true solutions, we have discussed colligative properties in our chapter solutions, chapter 2 of this book. Yeah. Colloidal particles being bigger aggregates, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution. Hence, the values of the colligative properties, osmotic pressure, lowering in vapor pressure, depression in freezing point, and elevation in boiling point are of small order as compared to values shown by true solutions at same concentrations. ठीक है, क्या बात समझ आ रही है? तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्योंकि बिगर होते हैं साइज में, तो इनका नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं. Hence, the value of colligative property, that is जो colligative property हम लोगों ने पढ़ी थी, osmotic pressure, lowering in vapor pressure, depression in freezing point and elevation in boiling point, ये सारी values का magnitude छोटा रह जाता है जैसे ही ट्रू सॉल्यूशन में होना था उसके कंपैरिजन में, राइट? रीजन क्या है? क्योंकि ये बड़े एग्रीगेट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है? तो इनका मोलर मास ज्यादा होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम जाता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं. एंड इफ यू हैव स्टडीड चैप्टर 2 यू मस्ट नो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बट नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है? Next thing is Tyndall effect. One of the most important things. If a homogeneous solution placed in a dark is observed in the direction of light, अगर हम एक homogeneous solution जो कि अंधेरे में रखा गया है उसको light में observe करें, it appears clear, and if it is observed from a direction at right angles, the direction of light beam, it appears perfectly dark. Why? The colloidal particles viewed in the same way may also appear reasonably clear or translucent by transmitted light, but they show a mild to strong opalescence. Opalescence का मतलब इनमें opaqueness आ जाती है. Mild to strong यानी कभी कुछ कम opaque होता है और कुछ ज्यादा opaque होता है. When viewed at right angles, the passage of light, that is the path of the beam, is illuminated by a bluish light. हो क्या रहा है कि they scatter the light. सिंपल शब्दों में समझें तो कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट. जो ब्राइट कोन ऑब्जर्व होता है वहां पर उसे टिंडाल कोन बोलते हैं. एंड द टिंडाल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स, प्लीज अंडरलाइन, असर्शन रीजन में आपको मिल सकता है, is due to the fact that colloidal particles scatter the light in all directions in the space. This scattering of light illuminates the path of the light of the colloidal dispersion. ठीक है? डिस्पर्जन मीडियम में जो लाइट के पार्टिकल्स मतलब जो कोलाइड के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उनको, उनकी वजह से ये पूरा सॉल्यूशन इल्यूमिनेट हो जाता है और लाइट का स्कैटरिंग होने की वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन दीस सॉल्यूशंस. ठीक है? फर्दर अगर हम आगे चलते हैं तो Tyndall effect can be observed during the projection of a picture in the cinema hall due to scattering of light by dust and smoke particles present there. Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. बात ध्यान समझिएगा. सिनेमा हॉल में आपके क्लासरूम में जब हम लोग प्रोजेक्टर पे आपकी क्लास लेते हैं तो प्रोजेक्टर से आने वाली बीम में आप पार्टिकल्स को देख सकते हैं. किसी एक बहुत झरोखे से पूरा कमरा बंद हो और किसी पतली सी नैरो एंट्री से लाइट इंटर कर रही हो आपके रूम में, तब भी आप टिंडाल इफेक्ट वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं जो एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल है उनकी हेल्प से. ओके, टिंडाल इफेक्ट के लिए दो कंडीशंस जो कंपल्सरी है वो क्या है? फर्स्ट, द डायमीटर of dispersed particles is not much smaller than the wavelength of the light used. जो भी लाइट आपने यूज की है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का जो डायमीटर है
वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में चला गया या वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफी छोटा है तो फिर स्कैटरिंग नहीं होगी। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम मस्ट ग्रेटली डिफर। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर आना चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस नहीं है तो भी स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि फिर वो आसानी से आपको दिखेंगे ही नहीं वहां पर, राइट। चलिए, प्लीज दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, आसानी से याद रहने वाले पॉइंट्स नहीं है, इनको 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और अब जबकि आपका पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजन का धीरे धीरे शेयर बढ़ता जा रहा है, तो आपको लाइन बाय लाइन डिकोड करके स्टडी करना जरूरी हो गया है। अगर हम टिंडाल इफेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो टिंडाल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। आप पास करा दीजिए लाइट दोनों से, अगर स्कैटर हो रही है यानी पाथ ऑफ लाइट दिख रहा है तो कोलाइडल, अदरवाइज ट्रू सॉल्यूशन है। Sigmondi in 1903 used the Tyndall effect to set up an apparatus known as ultra microscope. Sigmondi ने पहली बार 1903 में एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया Tyndall effect की हेल्प से। An intense beam of light is used focused on the colloidal solution contained in a glass vessel. The focus of the light is then observed with a microscope at right angles to the beam. Individual colloidal particles appear as bright stars. एक-एक particle चमक रहा था जैसे bright stars हो against the dark background. Ultra microscope does not render the actual colloidal particles visible, but only observe the light scattered by them. Alright. इसके आगे अगर हम चलें तो yes. So now okay, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था स्टूडेंट्स। हाँ, हम बात कर रहे थे कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डू नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल विजिबल बट ओनली ऑब्जर्व द लाइट स्कैटर्ड बाय देम। ठीक है, सिर्फ वो उनकी स्कैटर्ड लाइट को ही ऑब्जर्व करता है। Thus ultra microscope does not provide any information about the size or shape of the colloidal particle. यानी उसकी हेल्प से आप कोलाइडल पार्टिकल को नहीं देख पा रहे हैं, मगर उससे आने वाली लाइट को जरूर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, कलर की बात कर लेते हैं। The color of the colloidal solution depend upon the wavelength of light scattered by the dispersed particles. Wavelength of light further depends upon the size, उस पार्टिकल का साइज कैसा है, नेचर पार्टिकल का क्या है। The color of colloidal solution also changes with the manner in which the light observer receives the light. सामने से ले रहे हैं, परपेंडिकुलर देख रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर ऑफ मिल्क and water appears blue when viewed by the reflected light and red when viewed by the transmitted light. जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उधर से आप देखें तो ब्लू दिखेगा, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उससे आप ऑब्जर्व करें तो कैसा दिख रहा है आपको, रेड। ऑलराइट, ये डिपेंड करता है कौन सी लाइट स्कैटर हो गई और कौन सी बची हुई है। फाइनेस्ट गोल्ड रिजॉल्व इज रेड इन कलर। द रीजन बिहाइंड दैट इज, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे कि स्कैटरिंग, भाई कोलाइडल पार्टिकल स्कैटरिंग कर रहे हैं, एंड स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा मतलब लैम्डा से स्क्वायर का नहीं, 4 गुने का रिलेशन है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा स्कैटरिंग कम, राइट। और रेड लाइट की स्कैटरिंग इसीलिए मिनिमल होती है, जितना हमें लाइट स्पेक्ट्रम दिखता है उसमें रेड की स्कैटरिंग मिनिमल होती है। इसी वजह से गोल्ड रिजॉल्व मिनिमल रेड दिख रहा है। ये जो मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन अगर आप इमिटेड लाइट से देखें, यानी जो लाइट स्कैटर होने के बाद आ रही है तो रेड बच रहा है। ओके, और हमें रेड दिख रहा है। ब्राउनियन मूवमेंट की अगर हम बात करें, हाँ, हम ब्राउनियन मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स लगातार मोशन में होते हैं, फाइन, कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं, एक zigzag मोशन, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। द ब्राउनियन मोशन हैज एक्सप्लेन्ड द
इसके पीछे का रीजन जो है वो ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से उनसे टकरा करके ये भी जिगजैग मोशन में आ जाते हैं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ स्टारिंग इफेक्ट व्हिच डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल, और इसी वजह से जो आपके सॉल्व्स हैं यानी जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो स्टेबल भी होते हैं, राइट, क्योंकि उनके लगातार मोशन की वजह से स्टेबिलिटी भी सॉल्यूशन को मिलती है। ज्यादा बेटर यूज करें कोलाइडल सॉल्व को। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। अच्छा, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, उनमें हमेशा कोई ना कोई चार्ज होता है। ओके, पीछे हमने आपको बताया था जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व पढ़ रहे थे और पेप्टाइजेशन का मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कल ही वाले लेक्चर में कि प्रेसिपिटेट में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके शेक करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर चार्ज पार्टिकल की वजह से वो एक स्टेबल कोलाइड तैयार हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज सेम ऑन ऑल पार्टिकल्स, इसीलिए तो सॉल्यूशन मेंटेन कर पाते हैं। मे बी ईदर पॉजिटिव ईदर नेगेटिव, या तो सारे पॉजिटिव होंगे या तो सारे नेगेटिव होंगे। द लिस्ट ऑफ सम कॉमन सॉल्व्स विद द नेचर ऑफ चार्ज ऑन देयर पार्टिकल इज गिवन बिलो। अब इस लिस्ट को नोटिस कर सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व्स एंड नेगेटिवली चार्ज सॉल्व्स। हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे Al2O3, XH2O, CrO3.XH2O, राइट, इन सब में जो आने वाला इलेक्ट्रोलाइट है उसका पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब होता है, इसी वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बेसिक डाई स्टफ, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, हीमोग्लोबिन वगैरह में इनका यूज किया जाता है। ऑक्साइड्स के एग्जांपल में आप टाइटेनियम ऑक्साइड ले सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज सॉल्व में जैसे आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ज्यादातर मेटालिक सॉल्व्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को आसानी से एब्जॉर्ब करेंगे। मेटालिक सल्फाइड्स, Ag2S, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, एसिड डाई स्टफ, इयोसिन, कॉन्गो रेड सॉल्स, ये कलर प्रोड्यूस करने वाले डाई स्टफ्स हैं, ठीक है, इयोसिन भी और कॉन्गो रेड सॉल भी। सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, कोलाइडल सॉल्यूशन, गम, जेलाटिन, क्ले, चारकोल, ये सभी नेगेटिव सॉल्ट टाइप के हैं। ओके, देखिए इसमें लॉजिक बाय लॉजिक आप सिर्फ मेटल वाले याद रख सकते हैं कि मेटल में नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बाकी कोई भी ऐसा लॉजिक आप बहुत ज्यादा इसमें नहीं सेट कर सकते, तो इसको थोड़ा सा 1 से 2 बार पढ़ करके रिवाइज करके लर्न करने की कोशिश करिएगा। ओके, बाकी समय के साथ आप समझ पाएंगे कि एब्जॉर्प्शन का क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। चलिए, द चार्ज ऑन द सॉल्व इज ड्यू टू वन ऑफ द मोर रीजंस। एक कारण हो सकता है, ज्यादातर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं, या फिर हाँ देखिए कारण मैं अंडरलाइन करता हूँ, ड्यू टू द, एक कारण है, बहुत सारे कारणों में से एक कारण है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्व पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल। जब मेटल का हम इलेक्ट्रो डिस्पर्जन कर रहे थे उस समय उसने चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लिया और नेगेटिव चार्ज आ गया उस सब में, या फिर ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, जो मैं बता रहा था फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये एक कारण हो सकता है, या फिर ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ आइडेंटिटी इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करेंगे उसको अगर आगे आती है डिटेल में तो, ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट में समझिएगा। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन, सबसे ज्यादा कि उसने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में से, जो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, कि किसी एक आयन को एब्जॉर्ब कर लिया। The solved particles acquire positive or negative charge by preferential absorption of positive or negative ions when 2 or more ions are present in the dispersion medium. Preferential absorption of the ion common to the colloidal particle usually take place. This can be explained by taking the following example. आप समझिए, when silver nitrate AgNO3 solution is added to potassium iodide solution Ki में हमने AgNO3 डाल दिया, तो सिल्वर आयोडाइड यानी AgI प्रेसिपिटेट हो गया, absorbs iodine ions from the dispersion medium.
अब ये आयोडीन आयंस को एब्जॉर्ब करेगा डिस्पर्जन मीडियम से, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड सॉल्यूशन रिजल्ट्स। हाउएवर जब Ki सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 तो पॉजिटिव चार्ज का सॉल्व बनता है। नहीं बात समझ में आ रही है? फिर समझिए, एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें पोटेशियम आयोडाइड है, दूसरा कंटेनर है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट। अगर सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें हमने Ki ऐड कर दिया थोड़ा सा, तो AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, और क्योंकि सॉल्यूशन AgNO3 का तो एक्सेस में है, तो Ag प्लस आयन की वहां कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में AgI ये एब्जॉर्ब क्या हुआ है वो स्लैश करके हम लोग लिख देते हैं। तो AgI हमारा प्रेसिपिटेट था, उसके ऊपर Ag प्लस आयन एब्जॉर्ब हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज का सॉल्व बन गया। अगर Ki में हमने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 थोड़ा बहुत डाल दिया, तो यहां पर AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, और क्योंकि आयोडीन पहले से इस सॉल्यूशन में एक्सेस में है, तो आयोडीन एब्जॉर्ब होगा, I- नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व बनेगा। तो इसमें आपने क्या लिया पहले और उसमें क्या ऐड किया, ये दोनों बातें मायने रखती हैं। ठीक है, क्या एब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा? मैं फिर समझा दूं, जब हमने AgNO3 सेम दोनों चीजें हैं, AgNO3 में Ki डाला तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का सॉल्व बन रहा है, और Ki में AgNO3 डाला तो नेगेटिव चार्ज का सॉल्व बन रहा है। क्यों? AgI प्रेसिपिटेट सेम है, मगर यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज के आयन यानी I- को एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस केस में वो Ag प्लस आयन यानी पॉजिटिव चार्ज के आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ FeCl3 is added to excess of hot water, पॉजिटिव चार्ज का सॉल्व तैयार हो जाता है of hydrated ferric oxide is formed due to the adsorption of Fe3 plus ions. Fe3 plus ions का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसमें क्या ऐड किया हमने? FeCl3 is added to hot water, बहुत सारे हॉट वाटर में डाल दिया बस, तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा, और जो बचा FeCl3 है उसका Fe3 प्लस आयन जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज का सॉल्व बन गया। हाउएवर अगर आप फेरिक क्लोराइड FeCl3 को बेसिक मीडियम में यानी NaOH के मीडियम में डाल दें, तो वहां पर OH माइनस आयन एक्सेस में है, राइट? OH माइनस आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का सॉल्व तैयार हो गया। Having charge solve obtained with the adsorption of OH minus ions, having acquired a positive or negative charge by selection of adsorption, selective adsorption on the surface, colloidal particles are stated as stated above. This layer attracts counter ions from the medium of the second to form the second layer. अब जब पहली लेयर के पार्टिकल एब्जॉर्ब हो चुके हैं, मान लीजिए पहला OH माइनस एब्जॉर्ब हो गया, अब ये बगल वाले Na प्लस को भी तो एब्जॉर्ब करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट? और उसकी वजह से डबल लेयर बनती है, सेकेंड लेयर बनती है। ये देखिए, Agi माइनस था तो उसने K प्लस को और अट्रैक्ट कर लिया, और Agi में Ag प्लस था तो उसने I माइनस को और अट्रैक्ट कर लिया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, सेकेंड लेयर। ठीक है, ये देखिए सेकेंड लेयर है। आगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, विधि बिल्कुल ब्रेन ओपन रखेंगे। एक्टिव स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ब्रेन ओपन रखेंगे, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो से या फर्स्ट लेक्चर से क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुना है, वो बहुत ध्यान से आगे सुनेंगे। और जिन्होंने नहीं सुना उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स सीरीज में पूरे प्रेजेंट हैं इस चैनल पे, जाकर के देख लीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, आप देख रहे हैं टू लेयर हैं ऑपोजिट चार्जेस की अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल, इसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। प्लीज अंडरलाइन दिस नेम, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज द फर्स्ट लेयर ऑफ आयन इज फॉर्मली हेल्ड, जो पहली वाली लेयर है वो बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड होती है, एंड सेकेंड लेयर, इसीलिए फर्स्ट लेयर को फिक्स्ड लेयर भी बोलते हैं, एंड सेकेंड लेयर इज मोबाइल लेयर, इसीलिए उसको डिफ्यूज्ड लेयर भी बोलते हैं। सॉरी,
Alright, since separation of charge is seat of potential, ये जो separation of charge है, अलग अलग charges हैं, इसी वजह से तो potential difference बन रहा है. So the charges of opposite signs on the fixed and diffused parts of the double layer result in a difference in potential between these layers. This potential difference, अब इन दोनों layers के बीच में जो potential difference आएगा, that is called electrokinetic potential और zeta potential. Please ध्यान रखिएगा, zeta potential और Helmholtz electrical double layer, ये बहुत रेयरली याद रह पाने वाले शब्द हैं और इनकी डेफिनेशंस के साथ आपको लर्न करना है. दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं, असर्शन रीजन बनने के भी चांसेस हैं. हालांकि जब मैं चांसेस की बात करता हूं तो आप ये मान के चलिए कि एक एक लाइन से बन सकता है. ठीक है. The presence of equal and similar charges on the colloidal particles is largely responsible in providing stability to the colloidal solution, because the repulsive forces between charged particle having same charge prevent from coalescing and aggregating, that is coagulation होने से रोकते हैं when they come closer to one another. Electrophoresis, again important term to be understood deeply. The existence of charge on the colloidal particles is confirmed by electrophoresis experiment. इनके ऊपर चार्ज है colloidal particles की surface पे, ये confirm क्या आता है via electrophoresis. When electrical potential is applied across the two platinum electrode dipped in the colloidal solution, the colloidal particle move towards one or the other electrode. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया है कि सारे colloidal particle में एक ही चार्ज होगा, तो सारे के सारे एक ही तरफ मूव करते हैं, या तो पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द charge adsorbed on the surface of the colloidal particle. The movement of the colloidal particle under an applied electrical potential is called the electrophoresis. तो क्या है electrophoresis? The movement of colloidal particles under an applied electrical potential. Positively charged particles move toward the cathode, while the negatively charged particles move toward the anode. ठीक है. ये इसका डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं. अच्छा, प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन देख लीजिए जरा. द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्वेंट से डरने वाले सॉल्ट्स, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल. भाई वो सॉल्वेंट से तो ऐसे डर रहे हैं, तो वो अगर मेंटेन है तो वो किस लिए मेंटेन है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेम चार्ज, और उनके बीच में चार्जेस होने की वजह से रिपल्सन हो रहा है, तो पार्टिकल एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं. If somehow the charge is removed, तो तुरंत precipitation हो जाएगा. ओके, या फिर वो सेटल डाउन हो जाएंगे ग्रेविटी के लिए, क्योंकि उस सॉल्यूशन में तो उसको रिसीव नहीं कर रखा है. ये इरिवर्सिबल वाले सॉल्व हुआ करते थे, याद करिए पीछे के 2 लेक्चर पहले. If somehow the charge is removed, the particle will come nearer and to each other and form aggregate, that is coagulation हो जाएगा तुरंत, and settle down under the force of gravity. The process of settling of colloidal particle is called coagulation or precipitation of the sol. अच्छा, coagulation किया जा सकता है by different methods. क्या क्या तरीके हैं? पहला हमारे पास electrophoresis हो सकता है, opposite charge लगा करके. Second, by mixing two opposite charge sols. एक पॉजिटिव चार्ज सॉल है, एक नेगेटिव चार्ज सॉल है, दोनों को मिला दिया, न्यूट्रलाइज हो गए. न्यूट्रलाइज होते ही चार्ज खत्म, और चार्ज खत्म होते ही सारे पार्टिकल नीचे सेटल्ड. थर्ड प्रोसेस है बाय बॉइलिंग. जब आप बॉइल करते हैं तो क्या होता है? When a sol is boiled, the adsorbed layer is distributed due to increased collision. ठीक है. बॉइलिंग का मतलब आपने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो वहां पर फटाफट कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन पर सेकंड बढ़ जाएंगे, राइट. तो जो एडसॉर्ब्ड लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है एडसॉर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हट जाएगी, और मॉलिक्यूल्स चार्ज फ्री हो जाएंगे तुरंत. उनमें अल्टीमेट प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन हो जाएगा. बाय परसिस्टेंट डायलिसिस अनदर मेथड है. डायलिसिस पे भी हम लोग कर चुके हैं डिस्कशन पीछे वाले लेक्चर्स में. ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, traces of the electrolyte present in the sol are removed almost
completely and the colloid become unstable and ultimately coagulate. डायलिसिस के प्रोसेस से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी रिमूव कर सकते हैं, भले ही उसके एक्सपेंस में हमारा कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा जैसे ही प्रोसेस ऑफ कोagulation हो जाएगा, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा हम पीछे भी डिस्कस किए थे कि स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर अगर ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा तो फिर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट, क्योंकि न्यूट्रलिटी आ जाएगी सॉल्यूशन में। When excess of electrolytes is added to the colloidal particle as precipitated, the reason is that colloids interact with ions carrying charge opposite to that present, और इसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और कोagulation हो जाता है। It has been observed generally कि greater the valency of the flocculating ion, जो आयन आपने अंदर डाला उसमें, ग्रेटर इज द पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, जितना ज्यादा उसमें चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी क्षमता होगी प्रेसिपिटेशन करवाने की। दिस इज नोन बाय हार्डी-शुल्ज़े रूल, प्लीज ध्यान रखिएगा, हार्डी-शुल्ज़े रूल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नेम थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चों को सुनने में अजीब लग जाता है ना। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हालांकि आपके यहाँ नहीं है, हेल्महोल्ट्ज लेयर, डबल लेयर, राइट, इस तरीके के टर्म्स, हार्डी-शुल्ज़े रूल, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द कोagulation ऑफ अ नेगेटिव सॉल फ्लोक्युलेटिंग पावर इन ऑर्डर एल्यूमिनियम 3+, फिर Ba2+, फिर Na+, राइट। कल को इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, ऑलराइट, ओके। सो नाउ इसी तरीके से अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सॉल है तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना आसानी से वो उसको फ्लोक्युलेट कर पाएगा, यानी कोagulate कर पाएगा। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर required to cause precipitation of the sol in 2 hours is called coagulating value. Again very important definition, please underline कर लीजिएगा सारे लोग, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो मिलीमोल्स में रिक्वायर्ड है पर लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो उसको 2 घंटे में कोagulate कराने के लिए पर्याप्त है, दैट इज कॉल्ड कोagulating वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। The smaller the quantity needed, the higher will be the coagulating power. जितनी ज्यादा coagulating power या flocculating power है आयन की, इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी ज्यादा स्मॉलर क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, उतना स्मॉल आपकी कोagulating वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कोagulating वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्युलेटिंग पावर। Now coagulation of lyophilic salts, lyophobic salt का अभी तक हम लोग कर रहे थे, lyophilic का बड़ा आसान है। There are 2 factors which are responsible for the stability of lyophilic salt. These salts are charge and the charge and the solvation of the colloidal particles. एक तो चार्ज इनमें होता है और दूसरा सॉल्वेशन एनर्जी इनकी काफी हाई होती है। These 2 factors are removed, तो lyophilic salt can be coagulated. इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, this is done by adding an electrolyte, चार्ज खत्म हो जाएगा, and by adding a suitable solvent, कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसकी सॉल्युबिलिटी पहले से प्रेजेंट कोलाइड से ज्यादा हो, तो क्या होगा, कोलाइड बाहर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। when such solvents are such as alcohol and acetone are added to the hydrophilic salts, the dehydration of dispersed phase occurs. Under this condition a small quantity of electrolyte can bring about the coagulation. तो लायोफिलिक का काफी आसान है, लायोफोबिक के लिए हमको डिटेल में स्टडी करना हुआ था, ओके। आगे जाकर के देखें प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स को बचाएं कैसे, तो लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, हम सब जानते हैं ये बात। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, उनमें सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होती है, दैट इज कोलाइडल पार्टिकल्स आर कवर्ड बाय अ शीथ ऑफ लिक्विड which they are dispersed in, ठीक है, लायोफिलिक में। और लायोफिलिक salts या लायोफिलिक colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. When lyophilic colloids is added to the lyophobic salt, the lyophilic
particles form a layer around the lyophobic salt particle and thus protect the layer from the electrolyte, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और उसके कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आपने पहले से किसी लायोफोबिक सॉल्ट को स्टेबल करके फिर उसमें लायोफिलिक सॉल्ट ऐड कर दिया है तो लायोफिलिक सॉल्ट विल प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सॉल्ट। इस वजह से लायोफिलिक सॉल्ट्स या लायोफिलिक कोलाइड्स कैन बी यूज्ड एज द फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, और इसीलिए इनको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, इमल्सन लास्ट है बेटा, मैं समझ रहा हूँ इस चैप्टर में वीडियोस ज्यादा हो रहे हैं, लेक्चर्स बड़ा हो जा रहा है, फाइन, बट डोंट वरी, इमल्सन में हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे। जस्ट वन मोर लेक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर, राइट नाउ। So I can say that this is the second last lecture of this chapter. Thank you, keep learning.